Hello, class 10th student. In this video, we are solving our geography book, chapter number 3. Its name is Agriculture. Question answer. Your NCERT textbook questions. Question number 1 is multiple choice question. First question, based on the information given below. This is base. Oh no. This is base. Base. BAS. Based on the information given below, classify each of the situation as suffering from water scarcity or not suffering from water scarcity. Its answer is regional with high annual rainfall. रीजन विद हाई एनुअल रेनफॉल, तो ऐसे रीजन जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है एनुअल में, तो वहाँ पर वाटर स्केर्सिटी से उनको सफ़र नहीं करना पड़ता. रीजन्स विद हाई एनुअल रेनफॉल नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी. प्रत्येक में आपको क्या करना है, इसके बारे में बताना है कि वो सफरिंग है या नॉट सफरिंग है. B. Region having high annual rainfall and large population. Answer, they are suffering from water scarcity. जहाँ पर हाई एनुअल रेनफॉल होगी और लार्ज पॉपुलेशन रहेगी तो वहाँ पे वाटर स्केर्सिटी पाई जाएगी. सी. रीजन्स हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, तो वहाँ पर भी क्या होगा, वाटर स्केर्सिटी पाई जाएगी. दे आर सफरिंग फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी. डी. रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन, तो यहाँ पर भी क्या पाई जाएगी, वाटर स्केर्सिटी पाई जाएगी. सफरिंग फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट. इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के फेवर में नहीं है. First, multi-purpose projects provide water to those areas which suffer from water scarcity. B. Multi-purpose projects by regulating water flow help to control floods. C. Multi-purpose projects lead to large-scale displacement and loss of livelihood. D. Multi-purpose projects generate electricity for our industries and homes. So its answer is C. Multi-purpose projects lead to large-scale displacement of people and loss of their livelihood. ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा. ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में जो है उसके फेवर में नहीं है, इसके अगेंस्ट में. इसके क्या है, अगेंस्ट में, कि इससे क्या है, बहुत सारे लोगों को अपना जो है नेटिव प्लेस या जो अपना मदरलैंड है वो छोड़ने पड़ती है. इसकी वजह से ये इसके क्या हो जाएगा, अपोज में हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आज सम देर आर यहाँ पे क्या है, देर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड री राइट दैम करेक्टली. इनमें से आपको जो है फॉल्स स्टेटमेंट जो है उनको क्या करना है, सही करना है और वापस लिखना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, multiplying urban centers with large and dense population and urban lifestyles have helped in proper utilization of water resources. तो इसका आंसर हो जाएगा, multiplying urban centers with large and dense population and urban style have not helped in proper utilization of water resources but further create a big water scarcity problem. ये क्या करते हैं, बिग वाटर स्केर्सिटी को क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. बी. रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर डज नॉट अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो
and its sediments flow। क्या ये सही है? नहीं है, तो इसको क्या करना है? सही करना है। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्टेड द रिवर्स नेचुरल फ्लो, causing poor sediments flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir। Statement C: in Gujarat, the Sabarmati Basin farmers were not agitated when higher priority was given to water supply in urban areas, particularly during droughts। तो इसका आंसर हो जाएगा इन गुजरात फार्मर्स ऑफ द साबरमती basin region were agitated and almost caused a riot when higher priority was given to water supply in urban areas, particularly during droughts। Now, D statement, fourth statement. Today in Rajasthan, the practice of rough rainwater harvesting has gained popularity despite high water availability due to the Indira Gandhi Canal। So its answer is nowadays in Rajasthan the practice of rooftop water harvesting declining due to plenty of water availability from the perennial Indira Gandhi Canal। Question number 2. Answer the following questions about 30 words। Question first, how explain how water become a renewable resource। रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे वाटर, इसको आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। बिकॉज वाटर बिकम अ रिन्यूएबल रिसोर्स थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा वाटर जो क्या है? रिन्यूएबल हो जाता है। वाटर इवोपरेट फ्रॉम द रिवर्स, पॉन्ड, सीज, ओशियंस। इट इज एन रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन। इट वंस अगेन फास्ट फॉल डाउन। फास्ट नहीं है यहाँ पे, फॉल डाउन आएगा। क्या आएगा? फॉल डाउन ऑन द सरफेस एज प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल के माध्यम से वापस से प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज वाटर स्कैसिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन। यहाँ पे मेन की जो स्पेलिंग है वो है MAIN। क्या है? MAIN। मेन यानी मुख्य। यहाँ पे MAN मेन यानी आदमी वाला दे रखा है, गलत है इसमें। Answer: water scarcity, shortage of water as compared to its demand is known as water scarcity। पानी की कमी को ही क्या कहते हैं? वाटर स्कैसिटी कहते हैं। उसकी की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्या है? कम होती है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? वाटर स्कैसिटी कहते हैं। द मैन, यहाँ पर भी वापस ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे आएगा MAIN। क्या आएगा? मैन। द मेन कॉजेज ऑफ वाटर स्केर्सिटी आर as follows। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सेकेंड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड इज commercialization of agriculture, fourth is over exploitation of water resources, five is urbanization, and last is pollution of water। Question number third, compare the advantages and disadvantages of multi-purpose project। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के कुछ अपन को एडवांटेजेस बताने हैं, उसके फ़ायदे क्या है। ठीक है, तो फ़ायदे बताएंगे हम। सबसे पहले एडवांटेज इन क्या होता है? फ़ायदा। दे आर द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है मेन सोर्स है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन। और इनमें जो वाटर स्टोर होता है उसे हम इरिगेशन के रूप में यूज़ ले सकते हैं। तो ये टू क्या हो गए? इसके एडवांटेज हो गए। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इवन इन वाटर स्केयर एरियाज। इसके ऐसे एरियाज जहाँ पर वाटर की कमी है वहाँ पर वाटर के माध्यम से, डैम्स के माध्यम से क्रॉप उगाई जा सकती है, कैनाल के माध्यम से वहाँ पर इरिगेशन करके। तो इसके अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस कौन से हैं, नुकसान कौन कौन से हैं। दे हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। इससे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है। दे हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इससे हमारी जो सॉइल है उस पर भी क्या पड़ता है? बुरा प्रभाव पड़ता है। इरीगेशन हैज़ चेंज्ड द क्रॉपिंग ऑफ मैनी रीजन्स विद फार्मर्स शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। जहाँ पर इरीगेशन की अच्छी साधन है वहाँ पर
लोगों ने क्या किया है कि ज़्यादा पानी वाली जो फसलें हैं या इंटेंसिव ज़्यादा प्रोडक्शन वाली जो क्रॉप्स है उनको उगाना चालू कर दिया है और कॉमर्शियल क्रॉप की ज़्यादातर क्या करते हैं, खेती करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड्स। डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड। यहाँ पे क्या आएगा, सेमी एरिड, एरिड, ARID। ये इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है टाइपिंग में। और यहाँ पे रीजन, REGION, रीजन आएगा, रीजन REGION ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट। यहाँ पे भी रीजन की जो स्पेलिंग है वो गलत टाइपिंग हो रखी है, इसको आप सही कर लीजिएगा। REGION, रीजन। इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज carried out in the following ways. First is, particularly in Rajasthan, rooftop rainwater harvesting is commonly practiced to store drinking water. Second is, in arid and semi-arid regions, agricultural fields have been converted into fields आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, FEILDS, fields have been converted into grandparent storage structure that allows water to stand and moisten the soil, like the khadins in Jaisalmer and johars in other parts of Rajasthan. Next, particularly in Bikaner, Phalodi and Barmer, almost all the houses traditionally have underground tanks or tankas for storing drinking वाटर। तो ये इस प्रकार की जो तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं राजस्थान के अंतर्गत, जो हमारा एरिड और सेमी एरिड रीजन है, एरियाज वहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, describe how modern adaptation of traditional rainwater harvesting methods are being carried out to conserve and store water. Its answer is, in hilly and mountainous regions, people build divergent channels like the Ghats or Kus of the western Himalayas of for agriculture. Second है, rooftop rainwater harvesting is commonly practiced to store drinking water, particularly in Rajasthan. Next है, in the third plains of Bengal, people have developed inundation channels to irrigate their fields. In arid and semi-arid regions, agricultural fields have been converted into rain-fed storage structures that allows water to the stands and moisten the soil, like Khadins in Jaisalmer and Johar in the parts of Rajasthan. Johar in the other parts of Rajasthan. In the semi-arid regions of Rajasthan, particularly in Bikaner, Lodi, and Barmer, almost all the houses traditionally uh, have underground tanks for tankas for storing drinking water. Next, bamboo drip irrigation system is also being used in some states. Moreover, nowadays we are harvesting rainwater in tanks, dams, reservoir, etc. तो यहीं पर आपका जो ये वीडियो है समाप्त होता है। आपकी जितने भी NCERT के क्वेश्चन आंसर थे मैंने करवा दिए हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर notification and press the bell icon. Thank you.